نیوز میں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مستحکم اور مضبوط پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کا حق ادا کر سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بدامنی اور کمزور معاشی پالیسی مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ ہے. مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کبھی خارجہ پالیسی میں سر فہرست تھا, آج وہ پس منظر میں چلا گیا ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد جائز ہے. ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری بھارت کو کشمیریوں پر مظالم سے روکے. چیف جسٹس نے کہا کہ بلوچستان میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے. فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بلوچستان میں امن و امان سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان امان اللہ کنرانی نے بازیاب کرائے گئے تینوں افراد کی رپورٹ پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ یہ تینوں افراد اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. چیف جسٹس نے بلوچستان کے چیف سیکریٹری کو حکم دیا کہ 1 ماہ کے دوران فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے افراد کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے. ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس پر جسٹس خلجی عارف نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر پولیس والا مارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صوبے میں حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ امن کی بحالی کے لیے صوبے میں وسائل کی کمی ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ بلوچستان اسمبلی کو سب سے زیادہ فنڈز دیے گئے, کم وسائل کا رونا نہ رویا جائے. مقدمے کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. ادھر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بے نظیر قتل اور ممبئی حملہ کیس میں سینئر پبلک پروسیکیوٹر کی دوسری برعدم حاضری کے باعث سماعت 28 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج شاہد رفیق نے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کی جائیداد ضبط کرنے کے خلاف درخواست اور ممبئی حملہ سازش کیس کی سماعت کی. عدالت میں سینئر پبلک پروسیکیوٹر آج پھر پیش نہ ہوئے, جس کے باعث مقدمات کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 28 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. میٹرک کے طلبہ امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں یقیناً آج خوشیاں منا رہے ہوتے, مگر خرابی حالات نے ان کی خوشی پھیکی کر دی ہے. اب انہیں یہ خوشی 20 دن بعد ہی میسر آ سکے گی. اقصیٰ حسین کی رپورٹ. میٹرک کے یہ طلبہ فزکس کا پرچہ دے کر آ رہے ہیں, جو کہ ان کا آخری پرچہ ہونا تھا, لیکن پرچے ختم ہونے کی خوشی انہیں آج میسر نہ آ سکی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان کا اردو کا پرچہ خرابی حالات کی نظر ہو گیا تھا. آخری نہیں ہے, سیکنڈ لاسٹ آخری 8 تاریخ کو ہے. اس کے جتنا کچھ یاد کیا تھا اسی میں سے آیا, اور لاسٹ ٹائم بہت کم تھا. بس میرے انگلش کا باقی ہے, اس کے بعد ایک بہت اچھے ہوئے نا, تو اسٹارٹ کیے. میٹرک سائنس کا ملتوی شدہ اردو کا پرچہ اب 8 مئی کو ہوگا. طلبہ اس حوالے سے خاصے نالاں نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ امتحانات کے بعد انہوں نے چھٹیوں کی پلاننگ کر لی تھی, مگر 20 دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پرچہ دینے کا سوچ کر ہی ان کی خوشی ادھوری رہ گئی ہے. کیمرامین زاہد حسین کے ساتھ اقصیٰ حسین, CNBC پاکستان, کراچی. آسٹریلیا نے افغانستان سے اپنی فوج کو طے شدہ منصوبے سے پہلے واپس بلانے کا اعلان کیا ہے. دارالحکومت کینبرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریلوی وزیر اعظم جولیا گلارڈ نے کہا کہ افغانستان سے رواں سال آسٹریلوی فوجیوں کے انخلاء کا عمل شروع ہو جائے گا اور یہ 2013 تک مکمل ہوگا. آسٹریلوی وزیر اعظم کا یہ بیان افغانستان میں طالبان کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں 50 سے زائد افراد کی ہلاکت کے 2 روز بعد سامنے آیا ہے. افغانستان میں آسٹریلیا کے اس وقت 1500 سے 50 فوجی موجود ہیں. واضح رہے کہ 2013 میں ہی آسٹریلیا میں انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. پورٹ آف اسپین میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل ختم ہونے پر ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 49 رنز بنا لیے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. میچ کے دوسرے دن آسٹریلیا نے اپنی پہلی نامکمل اننگ 208 رن 5 کھلاڑی آؤٹ سے شروع کی اور اس کی پوری ٹیم 311 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی.
ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइकल हसी ने 73 और वॉटसन ने 56 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की जानिब से कैमरोच ने 5, शेलिंगफोर्ड ने 3 और डियो नारायण ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग शुरू की तो ऑस्ट्रेलिया की तरह इसका आगाज भी अच्छा ना था। सिर्फ 38 के मजमुए पर इसके 3 खिलाड़ी आउट हो गए। कैरन पावल ने 19 और बरात ने 7 रन बनाए, जबकि बिराथफील्ड बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो ब्राव 16 और चंद्रपाल 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइकल बेयर, पैटिनसन और हेल फिनास ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 262 रन की जरूरत है और इसकी 7 विकेटें अभी बाकी हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि गुज़िश्ता रोज कपरी सिनेमा के करीब होने वाली फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। एक बार फिर हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बताते चले कि गुज़िश्ता रोज कपरी सिनेमा के करीब होने वाली फायरिंग की CCTV फुटेज CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंसूर अहमद से। जी मंसूर, इस CCTV फुटेज में क्या नजर आ रहा है? जी आप देख सकते हैं कि CNBC पाकिस्तान को ये गुज़िश्ता शब ये वाक़या रूनुमा हुआ था एम जिना रोड पर कैपरी सिनेमा के सिग्नल के करीब, जहां पर 4 जो है मोटरसाइकिल सवारों पर तकरीबन 8 नामालूम मुसल्लह दहशतगर्द थे, जिन्होंने अचानक यहां पर फायरिंग की अंधाधुंध, जिसके नतीजे में 60 साल जो है राजा अलाउद्दीन जो है वो हलाक हुए थे, जबकि एक 50 साल रुबीना एक खातून थी, 68 साल मोहम्मद लतीफ़, 40 साल अकरम कुरैशी और सगीर नामी एक शख्स था, ये जख्मी हुए थे 4 अफराद। लोगों का इब्तदाई तौर पर यही कहना था कि ये लूट मार का वाक़या है, मगर जब पुलिस के आला हुकाम यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने इसको टारगेट किलिंग का वाक़या करार दिया था। आप फुटेज में देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी हुई है और दूसरी मोटरसाइकिल आकर उससे टकराती है, और उसके बाद यहाँ पर हम वाज़े तौर पर चेहरे भी देख सकते हैं कि एक शख्स जो ब्लू कलर की एक शर्ट में है उसकी जानिब से फायरिंग की गई, और उसके बाद फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि इंतहाई रश वाला इलाका है, रात का वक्त होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इस शहर पर, इस सड़क पर कितनी जो है ट्रैफिक की रवानी है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर जो दहशतगर्द थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने जिस शख्स को यहाँ पर टारगेट करना था 60 साल अलाउद्दीन, उसे टारगेट किया और उसके बाद वो बआसानी यहाँ से फरार होने में कामयाब रहे। मंसूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है नशर पसंद अनासिर के खिलाफ? जी देखिए, नामालूम अफराद के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो DIG साउथ हैं कमांडर शौकत, वो भी इस वाक़ये के बाद यहाँ पर पहुँचे थे, और ये फुटेज पुलिस के हाथों भी जो है इस वक्त मौजूद है। पुलिस भी इसके ऊपर जो है तफ्तीश कर रही है और मुल्ज़िमान का सुराग लगाने में मसरूफ़ है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो CCTV फुटेज सामने आई है और इसका जो डिस्टेंस है जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, अब तक जो हमने देखा है कि माजी में जितने वाक़यात हुए हैं इतनी वाज़े तौर पर इन दहशतगर्दों के चेहरे जो हैं वो नहीं आए हैं सामने, मगर इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर वो अफराद जो नामालूम हैं और वो मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद वो बआसानी यहाँ से फरार हो गए। जो पुलिस के हुक्काम हैं उनका यही कहना है कि हम इस वाक़ये की तफ्तीश। अच्छा मंसूर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं CNBC पाकिस्तान पर, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और निहायत सुकून से, निहायत इत्मीनान से एक अपने जो मतलूबा टारगेट है उसको फायरिंग का निशाना बनाते हैं। एक शख्स जो कि नीली कमीज में मलबूस है वो भी सड़क पर खड़ा होकर इस तरह फायरिंग कर रहा है जैसे वो फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो। उसे इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स उसको गिरफ्तार करेंगे। उसने अपना काम निहायत सुकून से, तसल्ली से, इत्मीनान से किया, और उसका काम यह था कि उसने एक बेगुनाह शख्स को फायरिंग का निशाना बनाया। आप नाज़रीन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं जिसमें CCTV फुटेज दिखाई जा रही है, जिसमें एक शख्स फायरिंग के बाद लोगों को अपनी जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले 2 मोटरसाइकिलों पे 2 अफराद सवार होकर आते हैं, एक शख्स को निशाना बनाते हैं। करीब ही एक शख्स जो कि नीली कमीज में मलबूस है वो सड़क पर खड़ा होकर
फायरिंग कर रहा है। यहाँ पर यह बात भी नोटिस करने की है कि इस वक्त शहर कराची में डबल सवारी पर पाबंदी है। वो मासूम और गरीब लोग जिनका जरिया, जो कि सवारी का जरिया मोटरसाइकिल है, वो तो डबल सवारी नहीं कर सकते, लेकिन वो दहशतगर्द जो लोगों को मारते हैं, जो लोगों की जानों से खेलते हैं, वो जब मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करते हुए आते हैं तो कोई पुलिस, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई रेंजर्स उन्हें रोक नहीं पाता। वो अपनी कार्रवाई को इत्मीनान से मुकम्मल करते हैं कैपरी सिनेमा के करीब और उतने ही इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। अच्छा मंसूर, ये भी बताइएगा, इस सारे वाकये के बाद ये सीसीटीवी फुटेज यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मिली होगी, उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स सामने आया है? ये जो अफराद इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं, इनके खाके बनाए गए हैं और क्या जगह जगह चश्मा करने का अमल शुरू किया गया है? जी देखें, खाके बनाने का जो अमल है वो हमारे ज़राए अभी तक तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि ये अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। पुलिस के जो हुकाम है, मुतलका हुकाम, खासकर जो DIG साउथ है कमांडर शौकत, उन्होंने भी बहुत जो है इस फुटेज का जो है मुआयना किया और उन्होंने इस सिलसिले में अहकामात भी दिए हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कि ये जो अफराद हैं जो मोटरसाइकिल पे यहाँ पर आए हैं, जो कि फुटेज में बासानी देखे जा सकते हैं, इनके खाके जो हैं वो बनाए जाएं और इनको जो दीगर पुलिस का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रूम है उसमें भी चेक किया जाए, इनकी तस्वीरें मैच की जाएं कि आया ये वो अफराद तो नहीं है कि इससे कबल भी ये इस किस्म के वाकयात में या पुलिस को ये मतलूब हो। एक और भी ओवैस मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि जिस वक्त ये वाकया यहाँ पर रूनुमा हुआ, पुलिस को इस वाकये की इत्तला मिली, बहुत देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो काफ़ी देर तक यहाँ पर हदूद का तनाज़ा भी चलता रहा, बिरेडी थाना और थाना नबी बख्श के दरमियान कि ये किसकी हदूद पड़ेगी। और उसके बाद जो है जो जब ये मामला सेटल हुआ कि ये किस थाने की हदूद है, तो उसके बाद इस शख्स की भी निशानदेही हुई जिसको नामालूम दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं उसमें जो मुल्ज़िमान हैं, जो फायरिंग के मुल्ज़िमान हैं, जो मोटरसाइकिल की डबल सवारी करते हुए आए, उन्होंने निहायत इत्मीनान से अपने टारगेट को निशाना बनाया। और नाज़रीन देख सकते हैं कि इन मुल्ज़िमान की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म की घबराहट इनके ऊपर नहीं है। निहायत तसल्ली से, निहायत सुकून से, निहायत इत्मीनान से गोया वो अपने घर में ये दहशतगर्दी की वारदात कर रहे हैं। वो कैपरी सिनेमा के करीब खुली सड़क पर जबकि ट्रैफिक हर जानिब रवां दवा थी, ये कार्रवाई की। नीली जो कमीज में मलबूस शख्स था उसने इत्मीनान से फायरिंग की और बाद में फरार हो गया। हमेशा की तरह सांप निकल गया है और पुलिस लकीर पीट रही है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।